Good afternoon, guys. We are AI Medical Dental Academy providing you guidance for how to pass easily any year of BDS, how to pass easily Neet MDS, Dental GPSC, any state public service commission exam, or any interview. We will provide you best platform to motivate you as well as provide support for how to read, which books to read, how to prepare for all the exams. Here we are with today's lecture on oral pathology. It's a basic subject for dentistry because as well as theory as well as practical in both we will go with oral pathology. It is called the heart of dentistry. In the previous lecture we will revise soon what we have done or what we have taught in the previous lecture. First of all, we had taught you anodontia. Okay. In anodontia, you see that there are various types. Okay, first of all, it is complete and partial. Okay, one more category of typing is true, false, and pseudo. So in your notes, you have to recall in this way. Complete means all teeth, partial means few teeth, true means really teeth are missing, false means teeth are submerged in enlarged gingiva or due to some swelling or due to some process. What happens in pseudo? In pseudo, we see that the teeth are small in proper in size, but they are not visible completely. That is called pseudo anodontia. After that, we had done amelogenesis imperfecta. So whenever you recall or read any new question, prior to that you have to revise it. Okay, amelogenesis means enamel formation process. Okay, ameloblast will be responsible. Now in amelogenesis imperfecta, this process is being disturbed. There are various stages. Okay, we have three types: hypocalcified, hypoplastic, and hypomaturation. So whenever you write in your exam, you have to write this way only. Okay, then types, then enamel affected, then teeth affected. You can write in this manner for easy recalling as well as it is enough for 5 marks. Treatment is cosmetic recontouring. Okay, whenever there is problem with enamel, what will be affected? Aesthetics as well as shape of the teeth. If the patient is having aesthetic problem, we will go for its cosmetic recontouring, and in the last stages when we don't have any options, you can go for veneers. Okay, veneers are layers of ceramic which are placed on the anterior tooth. In today's lecture, we will discuss about gemination and fusion. Okay, when tooth develops, sometimes there will be disturbance in tooth buds. Okay, so what happens in gemination? In gemination, it refers to partial development of two teeth from single tooth bud. Okay. For example, we are having a lower central incisor bud. So what it will do? It will bifurcate and form two crowns. Okay, so when you see in the mouth, you will see that there are two teeth. Okay, so from a single tooth bud, two teeth will be there. Okay, that's the definition. Okay, the structure is usually one with structure is usually one. Okay, it is only a one structure, no separate teeth are there with two completely or incompletely separated crowns. These crowns might be completely separated or might not be completely separated, and sometimes they have a single root and a root canal. When you see the root canal, there will be single. Okay, there will be no
different canals, single canal and single root. ठीक है? So in gemination, what happens in the oral cavity? You have number of teeth is equal to plus 1. Why? Because in the position of this tooth, you find that there is one more teeth. Okay, the n plus 1 will be there in this gemination. Okay, now it's found in both deciduous as well as permanent dentition. And etiology, so hereditary. Okay, now what happens? Only 3 to 4 things are there. Its definition, then how it is structured, then root canals, then found in deciduous as well as permanent, and its etiology. It is hereditary. No specific cause is there. Now what happens in fusion? What happens in fusion is, for example, lateral incisor, central incisor, as well as lateral incisor. What happens? They are combined. They sometimes join. Okay, at the level of dentin. Okay, here they join and form a single tooth. So here the situation would be n minus 1. What is n? Number of teeth. Why? Because two teeth are fused to become a single tooth. Okay, this is the difference between gemination and fusion. Then for fusion, to define it or to classify it to fusion, you must see that it must exhibit confluent dentin. Okay, dentin must be separated or demarcated perfectly. It is found both in permanent as well as deciduous dentition. Okay, but fusion is more in deciduous teeth. Okay, so it is about fusion and gemination. Now sometimes what happens? Fusion can be complete or incomplete, and it depends. What depends? It depends on the stage of odontogenesis, the process of tooth formation. The stages where the fusion takes, it will determine the fusion type, complete or incomplete. Okay, and which tooth are involved? Incisor tooth. Okay, now we go for torodontism. In torodontism, what happens is the crown is enlarged. Normal tooth I am drawing. This is normal tooth. Okay. Now what happens in torodontism? Roots will be small and crown will be large. ठीक है? So crown enlargement, okay, it at the expense of roots. Roots will be smaller. Torodontism meaning is bull shape appearance of tooth. They are telling that this is somewhat like bull. Okay, the crown is larger as well as legs are smaller. Okay, when you see a bull, body will be very large whereas legs will be very small. Okay, in this case we have very less developed roots. Now what happens in the tooth? What is its affected? The pulp chamber elongated, root will be rudimentary formation. Okay, that is meaning root will not be completely formed. Tooth shape will be rectangular, constriction will be minimal at the cervical area. Which teeth affected? Multi-rooted permanent molar teeth and sometimes premolar. Then bifurcation or trifurcation may be slight above the apices of root. What is bifurcation? For example, here root divide. So this is called bifurcation or trifurcation in case of 3-root tooth. Patient with hypodontia may have torodism. And treatment, no specific treatment is there because what happens? Sometimes there is abnormality with the tooth, but patient does not have any complaint, so will not go for any problem.
ओके, तो टोरोडेंटिज्म आप कैसे लिखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडेक्स बनाने के लिए आपको थोड़ा ऐड कर देता हूँ। इंडेक्स, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन बनाना तो आपको आना ही चाहिए। बुल शेप टूथ in which truth crown enlarge at expense of roots. Now its etiology, तो आप लिख सकते हो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, इडियोपैथिक, ये तो मैंने आपको समझाया है, इडियोपैथिक लिखना है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर, फिर यहाँ पे लिखना है टूथ, उसकी साइज, क्राउन ज्यादा होगा, फिर शेप, बुल और रेक्टेंगल, ठीक है। फिर आता है बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन, वो एपेक्स के नजदीक होगा, नियर एपेक्स, ठीक है। फिर आता है सिम्टम्स, ये टूथ के बारे में बता दिया। फिर आता है पल्प चैम्बर, तो वो एनलार्ज हो जाएगा क्राउन में, नीचे रूट्स में थिन होगा, ठीक है। फिर होता है क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स, नो सिम्टम और ट्रीटमेंट, तो नो ट्रीटमेंट। बस ऐसे जो मैंने यहाँ पे लिखा ना आपकी स्क्रीन पर, ऐसे ही टोरोडोंटिज्म लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभार ये पैराग्राफ में लिखोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे ये पेपर मेरा पूरा नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये है, इफ यू वांट टू पास यू हैव टू राइट कंप्लीट पेपर, इवन इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, complete solution will be there, and for you passing you have to write all the questions, even if you don't know you can write anything what you know. Now we come to supernumerary teeth, ठीक है। what happens is supernumerary teeth, sometimes tooth are no more than in number, normal number is 32, okay, so some tooth will be 33, 35, extra teeth will be called supernumerary teeth, okay. Now classification according to morphology, okay, it will be conical in shape, tuberculate in shape, supplemental, okay. And which tooth will be most affected in case of supplemental, maxillary lateral incisor, sometimes it will be odontome, odontome मैंने आपको समझाया है, odontome मतलब जब टूथ फॉर्म होता है ना तो टूथ जैसा बनता है लेकिन टूथ नहीं बनता है एग्जैक्ट, तो वो जो स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको ओडोंटोम बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या आएगा, टूथ के जैसा दिखेगा वो, और कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, वो टूथ के जैसा दिखेगा नहीं, वो स्टोन या कोई वाइट मास जैसा दिखेगा। इसलिए ओडोंटोम का डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं लोकेशन में, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, first of all, they have classified according to shape or morphology. Okay. Now they are classifying according to its location. So mesiodens, where you find the teeth between upper central incisor. Okay. Distomolars, they are distal to lower molar teeth. Paramolar. Okay.
They are found either on the buccal or lingual surface of molars. Extralateral incisors, so they are common in maxillary arch. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी आपके हिसाब से क्लासिफिकेशन है और लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो अब ये समझिए कि आपके मुंह में एक्स्ट्रा दांत आ गया है, यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा टीथ, तो व्हाट यू विल हैव प्रॉब्लम्स चूइंग, स्पीकिंग, deglutition, your tongue will not move properly, muscles will not be acting properly. So you can write many things in these clinical features. If you have extra teeth, it will also affect your aesthetics. Okay, so this way you have to not mug up the clinical features. You can write according to your thinking logic. Multiple superior teeth are found in Gardner's syndrome. गार्डनर सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में भी आएगा। उसमें क्या क्या आएगा, एक तो मल्टीपल सुपर नंबर टूथ आएगा, देन क्या क्या आएगा, डेस्मोइड ट्यूमर्स, sebaceous cyst, then hereditary intestinal polyposis। ये जो चीज है ना वो सब आपको वन लाइनर में आ सकता है कि क्या क्या होता है गार्डनर सिंड्रोम में। मैंने पीडीएफ भी भेजी है, जितने भी सिंड्रोम है उसमें क्या क्या होता है वो, तो आपको वन लाइनर के क्वेश्चन में काम आएगा। समटाइम्स जब सुपरन्यूमरी टूथ होता है ना तो डेंटिजरस सिस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, डेंटिजरस सिस्ट हमने आपको पढ़ाया था, तब बोला था इम्पैक्टेड टीथ, अनइरप्टेड या सुपरन्यूमरी टीथ में वो सिस्ट होती है। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड है। अब ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं तो कुछ मत करो, पेशेंट के कंप्लेंट के ऊपर वो निकालना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग थॉट्स होते हैं। अब आता है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट। ठीक है, जब डेंटिन बनता है तब डेवलपमेंट के टाइम कुछ दिक्कत आएगी, तो नीचे का जो डेंटिन है, ऊपर एनामल है, नीचे डेंटिन है, वो खराब बनेगा, इम्परफेक्ट बनेगा, तो वो प्रोसेस को बोलेंगे डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो पहले आएगा हमारा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में ये नहीं लिखना है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज, यहां से चालू करना है, इट्स एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन, दोनों को अफेक्ट करता है, डेसिडियस और परमानेंट। अब क्लासिफिकेशन है शील्ड का। ठीक है, शील्ड के क्लासिफिकेशन में क्या है, टाइप 1 में आएगा खाली डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नहीं है। दूसरे में विथ है, और तीसरे में क्या है, वो एक रेस में पाया जाता है। ठीक है, कुछ रेस होगी, मैरीलैंड स्टेट होगा ना यूएस में, वहां पे ये पाया जाता है, और तीसरे को हम बोलते हैं ब्रांडी वाइन। ठीक है, तो ये उसका क्लासिफिकेशन 1, 2 और 3। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है मतलब दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन बोन डेवलपमेंट और द बोन ऑफ द स्कल। Okay, now what these people have done, they have given a revised classification। पहले तो वाला इजी था, खाली DI, हम यहाँ पे शॉर्ट में बोलेंगे अभी। देखो पहले में क्या था, DI और नो OI, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा और नो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। दूसरे में DI विथ OI। ठीक है, और तीसरे में तो अलग ही है, मैरीलैंड में पाया जाता है और ब्रांडी वाइन जैसा अपीयरेंस होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन को रिवाइज दे दिया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितने भी क्लासिफिकेशन है, जितने भी टेबल है, वो सब आपको याद होने चाहिए।
अभी रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या है? DI नो OI, ठीक है। दूसरा नाम है ओपेलेसन डेंटिन, ठीक है। और वो जो ऊपर का क्लासिफिकेशन है पहले में जो किया उसके साथ ये मैच हो रहा है दूसरे वाला का, ठीक है। अब डेंटिन इम्परफेक्ट या टू में क्या आता है, वो तीसरे के साथ मैच होगा और उसको बोलते हैं ब्रैंडीवाइन टाइप टू, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन पहले में से निकाल दिया, बाद में दो ही कर दिया, ठीक है। विदाउट ऑस्टियोजेनेसिस और ब्रैंडीवाइन का टाइप कर दिया। अब आता है इटियोलॉजी। तो आप सोचिए इटियोलॉजी में क्या होगा। पहले तो आपको लिखना है कि वो इडियोपैथिक है, फिर आपको लिखना है कि हेरिडिटरी है, फिर आप लिख सकते हो ट्रॉमेटिक या नीचे भले जो भी दिया है, लेकिन आपको ऐसा लिखना आना चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे क्या क्या लिखा है। तो पहले तो जो क्रोमोसोम 4 पर जीन है और जो डीएसपीपी को कोडिंग करता है वो जीन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए वन लाइनर में डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, वो क्रोमोसोम नंबर किसके साथ लेना देना रखता है? तो इट विल हैव रिलेशन विथ chromosome 4, okay, and it codes for dentin, siloprotein and phosphoprotein, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स। तो अब ये समझिए कि पहले तो डेंटिन का काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। डेंटिन के अंदर डेंटिनल ट्यूबुल्स होती है जिसके अंदर फ्लूइड मूव होता है ना, तो हमको सेंसिटिविटी होती है, पेन होता है, वो सब, ठीक है। तो ऐसी सब थ्योरी है। तो डेंटिन क्या करता है, जो भी स्टिमुलस आता है बाहर से उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। पहले एनिमल रोकेगा, फिर डेंटिन के अंदर वो कम हो जाएगा और पल्प को प्रोटेक्शन देगा। कौन? डेंटिन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सिंस enamel इज एक्सपोज्ड, और enamel अगर एक्सपोज नहीं होता है तो भी डेंटिन खराब है अंदर से, तो कोई भी स्टिमुलस होगा ना बाहर से तो पेशेंट को वो ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। डेंटिन थोड़ा येलोइश कलर में होता है, वो थोड़ा ब्राउनिश कलर भी हो जाएगा। तो ऐसे सब क्लिनिकल फीचर्स यहाँ लिखने हैं। तो अब देखते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या लिखा है। टीथ का नॉर्मल कंटूर होगा, लेकिन वो ओपेलेसेंट टाइप का होगा। अगर डेंटिन नॉर्मल होगा तो वो हमको येलो व्हाइट का ह्यू लगता है दांत, लेकिन ये ओपेलेसेंट एम्बर, एम्बर मतलब थोड़ा ब्राउन जैसा कलर दिखेगा, ठीक है। इरप्शन के बाद नॉर्मल कलर अचीव कर लेगा, लेकिन कभी कभार ग्रे होगा, ब्राउन होगा। तो ये जो दो सेंटेंसेस है ऊपर के, ठीक है, तो वो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि कलर। तो आपको लिखना है कि क्या लिखना है, ऑपेलेसेंट एम्बर, कभी कभार ग्रे भी बनता है, कभी कभार ब्राउनिश भी बनता है, और लास्ट में ब्लू बन जाता है, ठीक है। तो आपको एक लाइन में या ऐसे आपको दिखाना है कि आपको पता है कि डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कलर चेंजेस बहुत होते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये देखिए, डेंटिन क्या होगा, सेंसिटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेंटिन का अंदर कंपनी में फॉल्ट है। तो जो रोल है डेंटिन का, क्या क्या रोल है, सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करना, पल्प को रोकना। तो सेंसिटिविटी को रोकेगा नहीं, फिर क्या आएगा, डेंटिन सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से, ठीक है, और आराम से आप कैरीज या कोई बैक्टीरिया होगा वो आराम से पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है हिस्टोपैथ। हिस्टोपैथ में क्या दिख रहा है कि इनेमल जो है वो नॉर्मल दिखेगा आपको, मेंटल डेंटिन जो है वो भी नॉर्मल दिखेगा। अंदर का जो डेंटिन होगा उसमें आपको थोड़े वाइट या पैचेस दिखेंगे कलर वाले, वो थोड़े इम्परफेक्ट जैसा दिखेगा हिस्टोपैथ में। फिर डेंटिनल ट्यूबल्स, उसमें क्या होगा, उसके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, वो खराब शेप हो जाएंगे, फंक्शन भी ठीक से
नहीं कर पाएंगे। और पल्प चैम्बर, ये टूथ है, ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी वो पल्प चैम्बर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कभी कभार ब्रेक भी हो जाएगा या ब्लॉक भी हो जाएगा। ठीक है, डेंटिन खराब जमा हो जाएगा यहाँ पे, तो ब्रेक भी हो सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ लिखा है ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, फिर डीज है, जहाँ डेंटिन और इनेमल का जंक्शन होता है वो स्केलप्ड होना चाहिए, वहां पे स्मूथ और फ्लैटन दिखेगा। और जो डेंटिन अंदर होगा ना, वो ट्यूबुलर डेंटिन का एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, डेंटिन जो फॉर्मेटिव स्टेज में पाया जाता है ना, वो आपको ज्यादा दिखेगा। तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, थोड़ा इजी है, जितने भी डेंटिन के रोल्स है वो सब अफेक्ट होते हैं, वो सब प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। उसमें कुछ नहीं, उसमें ये लोग ऐसा बता रहे कि ये टंग होगी, उसमें यहाँ पे एक डायमंड जैसा एरिया दिखेगा। ठीक है, तो वो लोग ऐसा बता रहे कि एसिम्टोमेटिक है, इलोंगेटेड है, एरिथमेटिस पैच, एरिथमेटिस मतलब रेड, ऑन एट्रोफिक म्यूकोजा, पेशेंट का म्यूकोजा है ना वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए डोर्सल सरफेस पर यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, रोम्बॉइड जैसा। रोम्बॉइड और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में राइट एंगल होता है और रोम्बॉइड में राइट एंगल नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सब साइड इक्वल होगी। अब क्लिनिकल फीचर्स एडल्ट्स में देखने को मिलेगा, मेल्स में देखने को मिलेगा। लीजन कैसा है, तो फोरेमन सिकम और सर्कमवेलेट पेपिला से थोड़ा एंटीरियर है। ठीक है, फिर कैसे दिखेगा, तो वो एरिथमेटिस एरिया है और मीडियन फिशर ऑफ टंग जो मिडिल लाइन में होगा ना उसके आजू बाजू दिखेगा। ठीक है, पूरे का पूरा जो लीजन होगा वो डायमंड शेप में आएगा और पेपिला वहां पे नहीं होगा। कलर कैसा होगा, तो पेल पिंक टू ब्राइट रेड। और सिम्टम्स, तो कोई सिम्टम होगा नहीं, और जब ये दिक्कत करेगा तब हमको लगेगा कि वो बर्न स्लाइड सोरनेस है और बर्निंग सेंसेशन आ रही है। ठीक है, अब आता है उसका हिस्टोपैथोलॉजी। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, हिस्टोपैथी जब भी आती है ना तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ करिए, कुछ भी हो ऐसे, फिर आपको एपिथेलियम भी ड्रॉ कर देना है, फिर ये जो लिखा है वो सब यहाँ पे लेबलिंग कर देना है, तो इससे आपके टाइम भी बच जाएगा और आपको डायग्राम से ही उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब लिंगुअल थायराइड, तो लिंगुअल थायराइड क्या है, तो जब थायराइड ग्लैंड बनती है ना, फंक्शनल थायराइड ग्लैंड, तब थोड़ा थायराइड टंग के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो वो जो रेमनेंट है उससे लिंगुअल थायराइड हो जाएगा, यानी कि टंग के ऊपर थायराइड ग्लैंड बन जाएगी छोटी वाली। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कभी कभार जो टंग में थायराइड होगा वो एक मास जैसा दिखेगा टंग के ऊपर। ठीक है, टंग के ऊपर थोड़ा एक मास जैसा दिखेगा जो 2 से 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, और फिरामेन सिकम जो होगा ना वहां पे वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे फोरामेन सिकम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सर्कमवेलेट पेपिला आएंगे। ठीक है, फिर आता है सिम्टम्स। कभी कभार ये आपको ऐसा लगेगा कि टंग पर थोड़ा सिस्ट टाइप का स्वेलिंग है। फिर सिम्टम्स, तो देखिए टंग के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें टंग के जितने फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे, स्पीच, मेस्टिकेशन, सलाइवा, फिर दिक्कत है ओरल हाइजीन में दिक्कत है, हेलिटोसिस है, ऐसे सब आपको लिखने का आएगा, वॉइस पेन, डिस्पेजिया मतलब खाने में दिक्कत। ठीक है, फिर आपको ड्राइनेस जैसा लगेगा, पेशेंट बार बार बोलेगा कि मुझे अल्सर हो गया है,
या ग्रोथ हो गई है, ठीक नहीं हो रहा है। हिस्टोपैथ में क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, उसके अंदर जो भी यहाँ पे लिखा है, जो कंटेंट है, आप यहाँ पे एपिथेलियम बता दीजिए, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए कि ये डीजनरेशन वाला है, एपिथेलियम कैसी है, ठीक है, वो आपको डायग्राम ड्रॉ करके एग्जाम में लिखना है। जितने डायग्राम ज्यादा ड्रॉ करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप वो लिंगुअल थायराइड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल देना है और फिर थायराइड की टिश्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सर्जिकल एक्सिजन भी आपको कर सकते हो अगर पेशेंट को बोलने में दिक्कत है, फंक्शनली कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल एनोमलीज ऑफ टंग एंड डिस्क्राइब एनी, ठीक है। तो टंग के जितने भी डिसऑर्डर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एग्लोसिया, माइक्रोग्लोसिया, छोटी टंग, बड़ी टंग, टंग में खड्डा, टंग में फिशर, टंग का स्क्रोटम टाइप जैसा हो जाना, तो बहुत सारी टंग की डिसऑर्डर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको सब अपनी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे अगर पूछे जाए कि सारे के सारे डिसऑर्डर्स लिखो, तो आपको ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स लिखने हैं। क्या क्या आएगा उसमें, पहले तो आएगा एग्लोसिया, मतलब टंग का नहीं होना, ठीक है, पहले आएगा एग्लोसिया, नो टंग, छोटी टंग, ज्यादा बड़ी टंग, टंग की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि आगे लिंगुअल फ्रीडम के साथ टच टंग टाई है। फिर क्लेफ्ट टंग, ठीक से टंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिशर टंग, टंग के बीच यहाँ पे फिशर है। मीडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस, वो रोम्बोइड जैसा है, अपीयरेंस है। ज्योग्राफिक टंग, तो ऐसे ऐसे लाइंस अलग अलग घूमती रहेगी टंग के ऊपर। हैरी टंग, यहाँ जो फिलीफॉर्म पेपिला होगा ना, वो चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बाल्ड टंग लगा, टंग पर बाल काटे है ना, ऐसा हमको लगेगा फिलीफॉर्म पेपिला की एब्सेंस में, ठीक है। अब आता है डेंटिन डिस्प्लेसिया। डेंटिन डिस्प्लेसिया क्या है, तो उसका दूसरा नाम है रूटलेस टीथ, ठीक है, यानी कि खराब डेंटिन फॉर्मेशन होता है और पल्प की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप डिसऑर्डर है, उसका मतलब ये हुआ कि मदर और पेरेंट को होता है, मदर और फादर को, तो उसके 90% चांस है कि वो बच्चे में होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, तो ये डिसऑर्डर होने के चांस ज्यादा है। तो डेंटिन डिस्प्लेसिया का दूसरा नाम क्या है, रूटलेस टीथ, ठीक है। अब टाइप्स, तो रेडिकुलर, इन द रूट फॉर्म है, रूट पोर्शन we have radicular dentin dysplasia, and in the coronal portion we have coronal dentin dysplasia. तो you have to write in this way, यहाँ पे radicular, यहाँ पे coronal, फिर you have to differentiate in this way. First of all, clinical features, both permanent as well as this deciduous, ठीक है, and root of teeth is defective and crown portion of teeth is normal. What happens here, only root is problem, root is having some problem, not crown. Sometimes due to the root weakness or root is not proper, our crown shows different color, bluish or brownish tendency. Roots are very poor, तो affected teeth exhibit more mobility. तो यहाँ पे देखिए डेंटिन डिस्प्लेसिया में क्या होता है, रूट्स ठीक से बनते नहीं, वो हेरिडिटरी वाला डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रूट्स के जितने भी फंक्शन है वो सब खराब होंगे, तो इसलिए डेंटिन डिस्प्लेसिया में क्या आएगा, रूट्स मोबाइल होंगे, रूट्स के आजू बाजू प्रॉब्लम होगा, फिर क्या होगा, कलर थोड़ा चेंज होगा क्राउन में, फिर परमानेंट और डेसिडियस डेंटेशन दोनों को अफेक्ट करेगा। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आएगा, आपको ड्रॉ करना है, जो आप सेकेंड ईयर हिस्टोपैथोलॉजी में ड्रॉ करते थे ना, वैसे आपको ड्रॉ करना है और सारे का सारा क्वेश्चन बताना है
कि अगर आप डेंटल टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजी देखोगे ना, तो सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड के जो लेयर होंगे ऐसे दिखेगा, या लावा फ्लोइंग अराउंड बोल्डर्स, ठीक है, पत्थर होंगे, उसको बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, फिर यहाँ से लावा नीचे फ्लो होता है, ऐसा हमको लगेगा, ठीक है। फिर जो नॉर्मल डेंटिन है और एबनॉर्मल डेंटिन है, वो अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर पाएंगे, उसमें अच्छी तरह से डिमार्केशन होगा, ठीक है। जो एबनॉर्मल होगा वहां पे एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स भी खराब तरीके से अरेंज की होगी, ठीक है। तो ये डेंटिन डिस्प्लेसिया थोड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन आपको इंडेक्स बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए। पहले आएगा डेफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, उसमें क्या क्या होता है। तो लिखना है कि रूट्स खराब है, क्राउन का पोर्शन कलर चेंज होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को खाने में दिक्कत हो जाती है, डेंटिन की वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी भी दिक्कत आती है, ठीक है। ऐसी सब चीजें आपको क्लिनिकल फीचर्स में लिखना है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही लिखना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट क्या आएगा, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, किसकी, रेडिकुलर डेंटिन डिस्प्लेसिया की, ठीक है। अब आता है कोरोनल डेंटिन डिस्प्लेसिया। अभी हमने ऊपर आपको बताया, ये दोनों को आपको डिफरेंशिएट करके लिखना है, रेडिकुलर और कोरोनल। ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स में मिलता है, खाली कोरोनल डेंटिन को अफेक्ट करता है। अब क्लिनिकल फीचर्स, दोनों टीथ को अफेक्ट करता है, डेसिडियस और परमानेंट। परमानेंट टीथ जो है ना, वो नॉर्मल कलर के रहेंगे, डेसिडियस टूथ होंगे वो एम्बर ग्रेवी कलर हो जाएगा, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करना है आपको। पल्प चैम्बर है ना, वो ज्यादा लंबा होगा, अंदर लार्ज होगा और फ्लेम शेप्ड होगा। फिर कभी कभार डेंटिकल्स भी पाया जाएगा। डेंटिकल्स का दूसरा नाम क्या है, पल्प स्टोन्स। पल्प वैसे सॉफ्ट टिश्यू होनी चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू होनी चाहिए, जो मूवेबल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कभी कभार जब डेंटिन डिस्प्लेसिया होगा, तो चांसेस है कि पल्प के अंदर कैल्सिफिकेशंस हो जाएगा, पल्प के अंदर पल्प स्टोन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और रूट कैनाल में भी पार्शली obliterated इन द एपिकल थर्ड रीजन। तो क्या होगा, ये दांत है, ठीक है, तो ये जो वन थर्ड रीजन है नीचे वाला, यहाँ पे रूट कैनाल obliterated हो जाएगी, ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो डेंटिन डिस्प्लेसिया भी 5 मार्क्स में आ सकता है। अगर आपको पूछे कि 7 मार्क्स में कोई भी दो डिसऑर्डर समझाओ, तो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कॉन्क्रीशंस, वो क्या है। कॉन्क्रीशंस ये है कि सीमेंटम का जो डिपोजिशन है ना, वो कुछ ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने के कारण ये एक दांत है, ये दूसरा दांत है, तो सीमेंटम यहाँ इतना ज्यादा हो गया कि दोनों कंबाइन हो गए, तो हमको पता चला कि ये कॉन्क्रीशंस है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीशन, इट्स अ यूनियन ऑफ रूट्स, ठीक है। आगे हमने देखे दो दांत यूनियन होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग क्राउन होता है तो वो जेमिनेशन होता है, दोनों दांत एक हो जाएंगे, दो क्राउन्स एक बन जाएगा तो वो फ्यूजन होता है। और कॉन्क्रीशंस, इसका मतलब ये है कि रूट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है। अब उसकी इटियोलॉजी, तो आप बोल सकते हो, या तो लिखा ही है लेकिन आप इडियोपैथिक बोल सकते हो, हेरिडिटरी बोल सकते हो, ट्रॉमेटिक बोल सकते हो, क्राउडिंग बोल सकते हो, हाइपर सीमेंटोसिस बोल सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्रॉनिक इलनेस या सिस्टमिक डिसीज। आपको लिखना आना चाहिए खाली, वो लोग अगर आप गलत लिखोगे तो माइनस मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सीमेंट टम से दो दांत जुड़ गए हैं, अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएगा, तो वो क्या है देखिए, एक वो एक्वायर्ड डिफेक्ट है, इरप्टेड और अनइरप्टेड टूथ दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर खाली सीमेंटम जो होता है
ठीक है, वो सीमेंटम ही होगा, फ्यूजन इनेमल में नहीं होगा, डेंटिन में नहीं होगा और पल्प में नहीं होगा। तो हमने जैसे देखा ना कि जेमिनेशन और फ्यूजन में क्या होता था, ये कॉमन हो गई थी रूट कैनाल, ठीक है, ऐसे रूट कैनाल कॉमन हो गई थी और फ्यूजन में अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे दो दांत तो एंटाइटिकली अलग ही रहेंगे, ठीक है, उसका रूट कैनाल सेपरेट होगा, सब एंटिटी खराब अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ से वो खाली चिपके रहेंगे, ठीक है। कौन सा टीथ मोस्ट कॉमन है, तो परमानेंट मैक्सिलरी मोलार 6, ऊपर का जो 6 है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है। कभी कभार जो नॉर्मल टूथ होता है और सुपरनमरी के बीच वहां भी कॉन्क्रीशंस हो सकता है, सीमेंटम से दो दांत जुड़ जाएंगे, ठीक है। और कब सीमेंटम जुड़ जाएंगे, कब उसके चांस बढ़ेंगे, कब कॉन्क्रीशंस हो सकता है, जब रूट्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तब कॉन्क्रीशंस के ज्यादा चांस है, ठीक है। तो कॉन्क्रीशंस का जेमिनेशन, फ्यूजन और कॉन्क्रीशंस थोड़ा आपको अलग पाड़ना, अलग करना आना चाहिए, ठीक है। अब आता है फोडेसिस ग्रेन्यूल्स, वो क्या है, तो वो जो बक्कल म्यूकोजा होगा ना, ठीक है, अंदर का या कोई ओरल म्यूकोजा होगा, वहां पे सीबीएसईएस ग्लैंड है ना, वो अनयूजुअल पैटर्न में कलेक्ट हो जाएगी। तो आप पेशेंट का मुंह देखोगे ना अंदर से ओरल म्यूकोजा में, तो ऐसे ऐसे ओपनिंग्स दिखेगा आप, कोई यूनिफॉर्म नहीं, हेटेरोट्रॉफिक है, अलग अलग जगह पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, सीबेशियस ग्लैंड कलेक्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस heterotrophic collection of sebaceous gland, we find some openings of sebaceous gland in the buccal mucosa or oral mucous membrane. It is called, or those are called phodaceous granules, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस वो क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि जो इनेमल बनता है बाहर का लेयर या एक्टोडर्म जो है बाहर का लेयर, उसके अंदर जो भी सिबेसियस ग्लैंड वाली स्किन है जो डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है, वो अंदर एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। ये मेनली डेवलपमेंट के टाइम प्रॉब्लम होता है, एक्टोडर्म के अंदर जो बाहर का स्किन बनाता है उसके अंदर जो ये स्किन वाली पोटेंशियलिटी रखता है सिबेशियस ग्लैंड वाला स्किन, वो अंदर फंस जाएगा, वो अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और इसलिए हमको लगेगा कि फोडेसिस ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, सेबेशियस ग्लैंड का ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, वो आपको येलो स्पॉट्स जैसे दिखेंगे बक्कल म्यूकोजा पर, कभी कभार अलग होंगे, कभी कभार ग्रुप में होंगे। Bilaterally they will be found on mucosa of cheeks opposite to molar teeth and on inner surface of lip or retromolar area. Sometimes they are also found in esophagus, female genitalia, male genitalia, nipples, palms and soles, parotid gland, larynx and orbit. Now, histological features. What are the histological features? You have to draw if possible. Then you are telling that they are unassociated with hair follicles. सीबेसियस ग्लैंड जो स्किन में होगी ना, वहां पे हेयर फॉलिकल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए फोडेसिस ग्रेन्यूल में स्किन में नहीं होती, वो ओरल म्यूकोजा में होता है और हेयर फॉलिकल नहीं है, ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर या हिस्टोलॉजिकल फीचर दूसरा क्या है, it may consist, first of all they will be superficial, it may consist of few or more tubules, all the ducts will be arranged properly and it will be opening in oral mucosa. कभी कभार डक्ट्स में केराटिन वाला प्लगिंग भी दिखेगा। और ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कोई आती नहीं है, ये तो क्या है कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तब हमको पेशेंट में दिखेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम पेशेंट को होता नहीं है, लेकिन हमको समझाना पड़ता है पेशेंट को कि ये प्रॉब्लम है, अगर दिक्कत है ज्यादा, आपको कोई आगे प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डेवलपमेंटल एनोमलीज ऑफ टंग।
वो लिस्ट करना है, एग्लोसिया, माइक्रोग्लोसिया, वो सारे के सारे आपको लिस्ट करना है। और सारे के सारे अभी समझाया है। एग्लोसिया मतलब दांत टंग का नहीं होना, मैक्रोग्लोसिया मतलब टंग का एनलार्जमेंट हो जाना, टंग बड़ी हो जाना। कहाँ कहाँ दिखेगा? तो पहले तो ट्रू मैक्रोग्लोसिया होगा और सीडो। ट्रू में क्या होगा? टंग ज्यादा बड़ी होगी। सीडो मैक्रोग्लोसिया में क्या होगा? हमारा जो बोन है, जो वो छोटा हो जाएगा, तो हमको लगेगा कि टंग बड़ी है। ठीक है। कॉजेस में देखिए, ये तो आएगा ही आएगा सारे में। कंजेनिटल हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है, लिम्फेंजियोमा, हेमेंजियोमा सब हो सकता है। तो अगर आपको कॉजेस इतने ज्यादा नहीं याद रहे तो आप 2 या 3 भी लिख सकते हो। डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ टंग। फिर एक्वायर्ड कॉजेस, ठीक है, पेशेंट में कभी कभार एक्वायर्ड कॉजेस क्या क्या है? तो पहले तो जब दांत रहेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि टंग बड़ी हो गई है। एमेलोडोसिस, मिक्सिडिमा, एक्रोमेगाली, ये सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। उसमें उसमें हो सकता है कि टंग थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए। फिर क्लिनिकल फीचर्स तो चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी। फिर मैंने आपको समझाया कि आप क्या क्या लिखोगे। तो आपको लिखना है कि खाने में दिक्कत है, टेस्ट डिसऑर्डर है, टंग मूवमेंट बराबर नहीं, स्पीच बराबर नहीं, डिग्लूटेशन बराबर नहीं, डाइजेशन बराबर नहीं, पेशेंट की सलाइवा जो होती है वो ठीक से रह नहीं पाएगी, थर्स्टी जैसा लगेगा। तो ऐसे आपको ये रटना नहीं है, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको तो याद ही होंगे। फिर आपको ये ऐड कर देना है, ओपन बाइट भी हो सकता है, मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म, यानी कि अगर दांत नहीं होते ना तो पेशेंट क्या करता है, टंग और नीचे के जो गम्स होते हैं वो आगे लाकर दांत की ओर, ऊपर के दांत की ओर मूव करता है, तब जाके चूइंग प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला मैंडिबल ऐसा लगेगा कि थोड़ा आगे आ गया है, तो बोलेंगे कि मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म है। ठीक है। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े पैराग्राफ दिया है, लेकिन आपको क्लिनिकल फीचर्स है शॉर्ट में लिख देना है। फिर देखिए, कभी कभार क्या होता है, टंग बड़ी है तो टीथ के बीच स्पेस भी है। फिर कभी कभार हमको श्वास लेने में भी तकलीफ होगी, फेरिंजियल एयरवे ब्लॉक हो जाएगा और हमको ऐसा लगेगा कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर एंकाइलोग्लोसिया, तो नीचे की टंग टाई हो जाएगी, टंग ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, बोलने में दिक्कत होगी और उसकी ट्रीटमेंट होगी फ्रेनेक्टोमी, निकाल देना है टंग को। ठीक है। फिर क्लेफ्ट टंग, क्लेफ्ट में क्या आएगा, टंग जैसे मर्ज होती है, लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला, वो दोनों मर्ज होकर टंग बनती है। तो इसमें कोई दिक्कत आया तो टंग थोड़ी खड्डा जैसी लगेगी आपको। ठीक है, तो बोलते हैं क्लेफ्ट टंग। तो डेवलपमेंट के टाइम दिक्कत आता है, वो ठीक से ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्लेफ्ट टंग होता है। क्लिनिकल फीचर्स, स्पीच, थर्स्टी, बर्निंग सेंसेशन, डिस्पेजिया, बोलस में प्रॉब्लम, पेशेंट को जेरोस्टोमिया जैसा लगेगा। आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप या फीचर्स क्लिनिकल फीचर में ऐड कर सकते हो। फिर आता है फिशर टंग। ठीक है, फिशर टंग मतलब स्क्रोटम जो होते हैं मेल्स में, उसके जैसे डिजाइनिंग हो जाएगी टंग की। ठीक है, तो वो भी कंडीशन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप अपने हिसाब से लिख ही सकते हो। टंग का शेप अगर ऑल्टर हुआ तो उसमें फूड डेब्रिस कभी कभार जम सकता है, पेशेंट को खाने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे फीचर्स लिख सकते हो। तो ये थोड़ा रटना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, टंग में प्रॉब्लम आया तो पहले स्पीच में प्रॉब्लम आएगा, फिर फूड में प्रॉब्लम आएगा, फिर सलाइवा में आएगा, फिर बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, फिर ये आएगा, क्या होगा, जेरोस्टोमी वाला डिसऑर्डर होगा, फिर ओरल हाइजीन पुअर होगा, फिर क्या होगा, ये एरिटोसिस हो सकता है, फिर कभी कभार डाइजेशन भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने आने चाहिए। ठीक है। अब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला एब्सेंट होंगे ऊपर से। फिर कभी कभार ऐसा लगेगा कि कोई
छोटा छोटा एब्सेस हो गया है, न्यूट्रोफिलिक एब्सेस टंग के ऊपर, ठीक है। और हाइपरप्लेसिया हो गया है रेटाइपिक का, और इंक्रीज्ड थिकनेस ऑफ लेमिना प्रोप्रिया। फिर आता है हेरिटन। तो हेरिटन में क्या है? हेरिटन में कुछ नहीं, जो फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं ना, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। ये टंग है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पेपिला होंगे, लेकिन यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपिला होगा। तो फिलीफॉर्म पेपिला है, उसकी हाइट बढ़ गई, ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि टंग पर हेयर जैसा है, बाल जैसा है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को बोलेंगे हम हेयरी टंग। अब इटियोलॉजी, तो बहुत सारी इटियोलॉजी है, आप देखिए। पहले तो पुअर ओरल हाइजीन है, फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस जैसा, एंटीबायोटिक ज्यादा ले रहा है, स्मोकिंग, टोबैको, क्रॉनिक इलनेस, इडियोपैथिक, जैसे मैं समझा रहा हूँ, फिर ट्रॉमेटिक होगा, ये सब आप लिख सकते हो। अब पैथोजेनेसिस, तो जो भी पेपिला है वो आपको एनलार्ज लगेंगे, फिर डिस्क्वेमेटेड लगेंगे, ठीक है। और डिस्क्वेमेशन के बाद वो नए एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ लिखना है कि डिस्क्वेमेशन, यहाँ लिखना है कि न्यू एपिथेलियल सेल्स, वो सब आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना हम काफी रखते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमने जो भी पढ़ा है अब तक, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आगे जाके एग्जाम में भी आ सकता है। हमारी वेबसाइट का नाम है, हमारी वेबसाइट जो लिंक है वो है www.medicaldentalacademy.com। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हो, हम ये लेक्चर का बाइंडिंग ही कर रहे हैं। So guys, if you like our lecture, please like it, like our videos, share our videos, and also subscribe our channel. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon. We will provide all the dental educational videos which will be helpful to you for tracking any exams of first to final year BDS, for any competitive exams after BDS. If you are going for any interviews, our notes and our videos will be helpful to you for providing a content answer. We will also explain you what is that content answer. You have to answer in complete details. So we will also provide you test series for MCQs. We provide you how to write exams. We provide you guidance for notes. So for passing easily any year of dental BDS, for state public service exams, our platform is the best platform. Our academy's name is AI Medical Dental Academy. So please like and subscribe. It's time for telling you bye bye. Have a nice time.